Good morning, all dignitaries and teachers present here. On the behalf of Lakhotia Butra High School CBSE Kumbhari, I heartily welcome you. We are all going to be a part of very prestigious NEET UG examination 2020 as an invigilator on 13 September 2020, that is tomorrow. So this is our responsibility to know here who is invigilator, what are the roles and functions of invigilator, what are the duties of invigilator. So let's understand these all things on the Zoom. So very first I am going to discuss here what is National Testing Agency. So this examination is conducted by the National Testing Agency, and National Testing Agency is very well known for their smooth and fair conduct of examinations. The Ministry of Human Resource Development, that is MHRD, Government of India has established National Testing Agency, and National Testing Agency is an independent, autonomous and self-sustained premier testing organization registered under the Societies Registration Act 1860. So it has number of objectives to conduct the efficient, transparent and international standard test in order to assess the competency of candidates for admissions. Why this objective? Because to provide the well trained and well efficient मेडिकल प्रोफेशनल टू आर कंट्री, हमारे कंट्री को अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी एनटीए की है, और इसीलिए एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है वो बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती है। इसके साथ साथ टू अंडरटेक द रिसर्च ऑन द एजुकेशनल, प्रोफेशनल एंड टेस्टिंग सिस्टम, टू आइडेंटिफाई द गैप इन द नॉलेज सिस्टम एंड टेक स्टेप फॉर द ब्रिजिंग देम। इसके साथ साथ जनरेशन गैप्स को मेंटेन करना और समय समय के साथ में इसमें इम्प्लीटेशंस करना, और जैसे कि प्रीवियस एग्जामिनेशंस को जो आउटडेटेड लॉ था उससे लिया जा रहा था, तो जो करंट एग्जामिनेशन है वो 2019 में जो नेशनल मेडिकल काउंसिल, नेशनल मेडिकल एक्ट को पास किया गया और उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस किए गए उसके बेसिस पे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जा रहा है। And the third objective is to produce and disseminate information and research on the education and professional development standard। इसके साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड को भी यहाँ पे बनाए रखने की चुनौती जो होती है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की होती है, और उसको पूरी ईमानदारी से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है, पूरा करती है। So the national eligibility cum entrance state, that is NEET UG 2020 for admission to the undergraduate medical educations will be conducted by the National Testing Agency. The National Medical Commission Act 2019 received assent of the President on 8 August 2019. Section of this act, that is section number 14 of the National Medical Commission Act 2019, provides for the holding of common and uniform national eligibility cum entrance state, that is NEET, for the admission to the undergraduate medical courses in all medical institutions including those governed under any other law. Thus, the admissions to MBBS course in AIIMS New Delhi, JP Mayer and all AIIMS like the institutions will also be made through the NEET. So हमारे देश में सभी जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, सभी मेडिकल कोर्सेज चलाने वाली, तो उसके लिए ये कॉमन एंट्रेंस इस द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट का जो सेक्शन 14 है उसके आधार पे कंडक्ट की जाती है एनडीए के थ्रू, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। So the NEET UG 2020 will be conducted on 13 September 2020 on Sunday from 2 p.m. to 5 p.m. in office mode. I repeat again, this exam is going to take place on 13 September 2020 on Sunday from 2 p.m. to 5 p.m. In offline mode, pen and paper test at 3,842 examination center across the 155 cities in the country. The duration of the test will be 3 hours. So unique features of this examination, we are going to discuss the comparison of the previous examination and recent examinations on the basis of legal status, admitting college and institutions courses,
टेस्ट डिजाइन, एग्जामिनेशन टाइमिंग, टेक्स्ट बुकलेट्स, ओएमआर आंसर शीट्स, थंब इम्प्रेशंस, एनटीए लॉजिस्टिक, पावर एप्स एंड लॉग्स। तो पहले वाले प्रीवियस एग्जामिनेशन को इंडियन मेडिकल काउंसिल एंड डेंटल काउंसिल एक्ट से क्या किया जाता था, कंडक्ट किया जाता था। जो कि जो करंट एग्जामिनेशन है नीट यूजी 2020 की, इसको नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के अकॉर्डिंग इसको कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि लास्ट ईयर में इसको पास कर दिया गया था। तो पहले वाले एग्जाम में जैसे कि ये आईआईएमएस जैसे जो कॉलेजेस थे उनके लिए एग्ज़ाम नहीं लागू थी, लेकिन इस साल होने वाली ये एग्ज़ाम इन सभी कॉलेजेस को, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। पहले वाले एग्ज़ाम में जो कोर्सेज चलते थे वो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ही ये एंट्रेंस होती थी, लेकिन रिसेंट एग्ज़ाम में एमबीबीएस बीडीएस के साथ में बाकी जो अंडर ग्रेजुएट आयुष के जो प्रोग्राम्स है, कोर्सेज है, उसके साथ में अदर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज है, उनको भी ऐड कर लिया गया है। जो जहाँ तक हम टेस्ट डिज़ाइन की बात करते हैं तो लास्ट ईयर का जो पैटर्न है उसी पैटर्न को कंटिन्यू किया गया है। और जो टाइमिंग है तो टाइमिंग को भी एज इट इज़ कंटिन्यू किया गया है। जैसे लास्ट ईयर में 180 क्वेश्चंस हुआ करते थे, तो इस साल भी 180 क्वेश्चन ही है यहाँ पे, और 2 PM से 5 PM तक इसको कंडक्ट किया जाता था, तो सेम टाइमिंग रखा गया है। टेस्ट बुकलेट में कुछ चेंजेस जरूर हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि लास्ट ईयर इंग्लिश और हिंदी के सिंगल लैंग्वेज और कुछ रीजनल लैंग्वेज को ऐड किया गया था। तो यहाँ पे रीजनल के साथ में उर्दू ऑल सेंटर पे अवेलेबल है, हिंदी बंगाली है, इंग्लिश सिंगल लैंग्वेज के भी है। तो ये सब हम डिटेल आगे देखने वाले। ओएमआर शीट जैसे लास्ट ईयर प्रीवियस एग्जाम में सिंगल कॉपी हुआ करती थी, करंट ईयर में आपको ओरिजिनल कॉपी के साथ में अंडर लेयर ऑफ ऑफिस कॉपी भी मिलेगी, उसकी इम्प्रेशन उसके ऊपर में होंगे, दोनों को कलेक्ट करना है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। थंब इम्प्रेशन मैंडेटरी था लास्ट ईयर एग्जाम में, इस साल करंट ईयर में थंब इम्प्रेशन विल नॉट बी टेकन, इंस्टेड ऑफ सिग्नेचर विल बी टेकन देयर। एनटीए लॉजिस्टिक पावर ऐप से ट्रैकिंग किया जाएगा मटेरियल, एग्जाम मटेरियल। लास्ट टाइम क्यूआर कोड्स को स्कैन किया जाता था, और लॉक के बारे में डिजिटल लॉक पहले भी थे, सिमिलर लॉक इस साल भी है। So it was all about the unique feature of this recent examination and comparison with the previous examinations. So at a glance, NEET UG 2020 application submitted, application form submitted with fees 15,96,192 candidates. Gender wise अगर बात करें तो male candidate there are the 7,16,039 candidate and female candidate are 8,80,146. Transgenders are there 7 only. So nationality wise the fees submitted number of candidate Indian candidates are there 15,92,654. OCI NRI PI 727 1881 and 55, and foreigners are also here 875। तो फॉरेनर ने भी 875 फॉरेनर ने यहाँ पे अप्लाई किया है एग्जाम के लिए। तो इससे पता चलता है कि एनटीए इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है, और इसीलिए जो फॉरेन कंट्री के जो कैंडिडेट है इस एग्ज़ाम को अप्लाई करके अलग अलग जगह पे, मतलब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन में उनको मेरिट के आधार पे क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है। दैट्स वाई आई टोल्ड हियर we are going to be become a part of very prestigious NEET examination conducted by the National Testing Agency. So नीट यूजी 2020 के एग्जामिनेशन सिटीज कितनी है इंडिया में, तो 155 है। एग्जामिनेशन सेंटर अप्रॉक्सीमेटली 3842 है। एग्जामिनेशन सिटी विथ मैक्सिमम कैंडिडेट पटना है, जिसमें 61,932 कैंडिडेट्स वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। एग्जामिनेशन सिटी विथ मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि कवरत्ती है, 187 कैंडिडेट वहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं। एंड जैसे कि हम इंडिया के मैप में देख सकते हैं कि 155 सिटी कौन कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पे ऐसा इंडिया का कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे एग्ज़ाम का सेंटर ना हो, सभी स्टेट को यहाँ पे कवर किया गया है। सो टेस्ट पैटर्न को समझते हैं। तो टेस्ट पैटर्न में एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंक्लूडिंग बॉटनी एंड जूलॉजी, ये सब्जेक्ट है एग्ज़ाम के। और इसके पैटर्न की अगर बात करें हम, तो प्रीवियस पैटर्न को कंटिन्यू किया गया है इस एग्ज़ाम के लिए। 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर देयर। So 4 options with the single correct answer from physics, chemistry and biology. Biology contains botany and zoology.
to be answered on the specially designed machines gradable sheet using ballpoint pen provided at the examination center। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है यहाँ पे कि कोई भी कैंडिडेट अपने घर से यहाँ पे पेन अलाउड नहीं है और दूसरे पेन से वो यहाँ पे ओएमआर शीट को भरना नहीं है। तो ये बिल्कुल कंफर्म करना है आपको जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करोगे तभी। तो इस टेस्ट का जो ड्यूरेशन है, द टेस्ट विल बी कमेंस एट 2 p.m. एंड विल बी कंक्लूडेड एट 5 p.m. तो 3 आवर्स का ड्यूरेशन है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स में से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में से 45 और बायोलॉजी के बॉटनी और जूलॉजी से 45 दैट इज 90 का वेटेज है। तो कुल मिला के 180 क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसके ऊपर में जो मार्क्स की हुए ईच क्वेश्चंस कैरीज द 4 मार्क्स। ये हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स दिया जाएगा। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स द कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स। अगर कैंडिडेट का रिस्पॉन्स आंसर करेक्ट है तो उनको एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर द टोटल स्कोर। और अगर कैंडिडेट का कोई रिस्पॉन्स गलत है तो जो भी उसका टोटल स्कोर होगा उसमें से 1 मार्क्स क्या ईच इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो देयर आर द 720 मार्क्स टोटल मार्क्स जो तो 720 मार्क्स की ये टोटल 720 मार्क्स की ये क्या है एग्जामिनेशन से 180 क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। तो ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि इन्विजिलेटर को अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी का थोड़ा बेसिक भी अगर नॉलेज है तो कोई मतलब कैंडिडेट के पेपर में झांक के नहीं देखेगा और किसी भी टाइप की उसको कोई सहायता नहीं करेगा। दिस इज योर ड्यूटी बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि जो एनटीए है वो अपने ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन के लिए वेल नोन है और ये काफ़ी हद तक इन्विजिलेटर के ऊपर में डिपेंड होता है। द इन्विजिलेटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी इन द स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग नीट यूजी 2020 एंड you are the invigilator of NEET UG 2020, right? So it is expected that you shall perform your duty judicially for completing the responsibility, proper administration and discipline inside the examination room, completion of all formalities to ensure the proper documentation, fair conduct of examination inside the examination room। ये सब जो रोल होंगे वो एक इन्विजिलेटर के होंगे जो कि आगे जाके हम समझेंगे। सो स्टेट वाइज मीडियम ऑफ द टेस्ट, इसका एक पिक लेके रखिए आप। तो इसमें मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर देके रखे इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश एंड आसामी। तो आसामी विल बी अवेलेबल द एग्जाम सेंटर इन द आसाम। बंगाली विल बी अवेलेबल इन द वेस्ट बंगाल एग्जामिनेशन, जहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वहाँ पे बंगाली पैटर्न अवेलेबल होगा। तो गुजराती कहाँ पे होगा, तो गुजराती गुजरात, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, जो कि हम महाराष्ट्र में एग्जामिनेशन सेंटर है हमारा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, फिर भी एक पता होना चाहिए एज एन इन्विजिलेटर सब। तो इसका एक पिक लेके रखिए आप, हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मराठी वाला कोई कैंडिडेट हो सकता है या हिंदी वाला हो सकता है। तो ये महाराष्ट्र में मराठी का आपको मीडियम मिल जाएगा और क्वेश्चन बुकलेट भी मिल जाएगा, टेस्ट बुकलेट भी मिल जाएगा यहाँ पे। सो कुछ जैसे इंग्लिश और उर्दू जो है वो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर पे है और हिंदी इंग्लिश ऑल एग्जामिनेशन सेंटर पे और इंग्लिश ऑल एग्जामिनेशन सेंटर पे है। तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर दैट मीन योर सेंटर, राइट? सो इसका पिक ले लीजिए आप लोग। तो टेस्ट बुकलेट जो होगा कुछ इस टाइप का होगा। This is the replica of the question paper. English medium, black and white color test booklet in the English only. Hindi medium, Bengali test booklet, one each of English and Hindi in black and white color. Regional language trilingual test booklet in the selected language plus English, Hindi, the regional question booklet except Urdu will be in the yellow color, right? So Urdu test booklet in the trilingual kit would be of light green color. Test booklet for each student would be sealed in plastic packet, will be opened by the student only. So let's see the examination functionaries and their role responsibility. So NTA control room, the pillar of NTA control rooms are city coordinator, observer, center superintendent, deputy center superintendent, which is appointed by the center superintendent,
and invigilator. So we are going to understand the role of these all persons here for the better conduction of examination. So our center number is 3111207. Lakhotia Butra High School CBSE Kundari is our center, and we are going to invigilate on this center. So dear invigilators, exam functionary, the exam center will open according to the instruction given by the center superintendent. This is our center. So center reporting time as guided by center superintendent in briefing. So I think 9 a.m. is the timing. So make sure, confirm it by the center superintendent. So the what is the role of observer and who is the observer for our center? So Dr. Rushali Ji Nasri is our observer for our center, as I said. So observer are the public representative deputed by the NTA for the conduct of examination to witness and ensure that the examination is conducted in fair and smooth and hustle-free manner. It is expected that they will assist NTA center superintendent and other staff at the center in the smooth conduct of examination by performing their duties effectively. They will accompany the center superintendent or authorized representative of the center superintendent of the examination center. So this is our observer, Dr. Rushyali Ji Nasre, for our center. Second thing, the main controller of the examination center is center superintendent. Our principal ma'am Lakhotia Butra High School CBSE Kondali, Mr. Jyoti Rao as a center superintendent. The center superintendent will be the in charge of the center where examination is being conducted. The center superintendent will be appointed by the NDA and will be responsible for the smooth, fair and successful conduct of examination at the center. If you have any kind of query, then you can contact with the center superintendent. If in case of any emergency you have to leave the center, then without consult of center superintendent you can't leave the center. This is also very important, and you have to follow the all instruction given by center superintendent. Time to time you have to follow these all instructions. Center superintendent will also coordinate with the CT coordinator, observer and NTA team. Further, Deputy Center Superintendent 1 and Deputy Center Superintendent 2 are appointed by the Center Superintendent in their absentee to manage the center or the instruction given time to time. Our first Deputy Center Superintendent is Mistress Pravina Chismalkar and the second Deputy Center Superintendent is Mr. Ganesh Shembekar. As well as for the good administration, our center superintendent appointed the administrative staff 1 and 2. Mr. Vasudev Kambdi is the administrative staff 1 and Miss Nikita Gupta is the administrative staff 2. You can consult for the documentation, registration process and further queries. You can take help of Mr. Vasudev Kambdi and Miss Nikita Gupta ma'am. Both persons are appointed by the center superintendent to look after the documentation work and administrative work. No candidate shall be allowed to enter the examination center after 1:30 p.m. So candidate must ensure that they leave home well in advance considering all facts like traffic location of the center and weather condition etc. So this time you have to follow. तो सभी इन्विजिलेटर को इस टाइम को ध्यान में रखना है. ये कैंडिडेट की खुद की जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनको घर कब छोड़ना है और सेंटर कब पहुंचना है, क्योंकि 1:30 के बाद में किसी भी कैंडिडेट को सेंटर पे अलाउ नहीं किया जाएगा, सेंटर के गेट को बंद कर दिया जाएगा. इसीलिए ये बात आपको पता होना चाहिए. नो रीज़न विल बी कंसिडर्ड टू एंटर देम. किसी भी कारणवश उनको अंदर नहीं लिया जा सकता है.
कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू एट एग्जामिनेशन सेंटर। कैंडिडेट को एक बार एंटर होने के बाद में नंबर ऑफ प्रोसीजर से, नंबर ऑफ एक्टिविटीज से यहाँ पे सेंटर में से पास होना पड़ेगा। जैसे कि रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट एज पर द टाइमिंग इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड। सभी कैंडिडेट को अलग अलग टाइमिंग एडमिट कार्ड पे रिपोर्टिंग का दिया हुआ है, उसको ही कैंडिडेट फॉलो करेंगे और सेंटर पे आना शुरू करेंगे। तो सभी इन्विजिलेटर को ये पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूटीज, सभी को अपना रोल प्ले करना है। जो भी रोल आपको सेंटर सुप्रिटेंडेंट दिया है उसी रोल को आपको फॉलो करना है। तो कैंडिडेट विल कम फ्रॉम 11 AM टू 1:30 AM। थर्मल स्कैनिंग होगा कैंडिडेट का, फ्रिस्किंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उनको चेक किया जाएगा। अगर कोई ऑर्नामेंट पहन के आते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फ़ोन या बाकी इलेक्ट्रॉनिक की कोई वस्तु वगैरह लाते हैं तो उसको रोका जाएगा, उसको वहीं पे निकालने के लिए बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, आईडी प्रूफ को देखा जाएगा, गवर्नमेंट की जो एक आईडी प्रूफ है उनका हॉल टिकट देखा जाएगा, उसको मैच किया जाएगा। उसके बाद में ही उनको एंट्री दी जाएगी। अगर किसी के पास में गवर्नमेंट की आईडी प्रूफ नहीं है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ नहीं है, हॉल टिकट नहीं है, तो उनको अलाउड नहीं किया जाएगा, किसी भी कंडीशन में अंदर नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ ये सब फ्रिस्किंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में उनका रजिस्ट्रेशन होगा। So all candidates are accepted to go through these all process. The duties of invigilators. So what are the duties of invigilators? There are four duties of invigilator before examination start. Number of duties are there. At the beginning of exam, number of duties are there. During the examinations, number of duties are there. And after the examinations, there are few duties of examination and very important duties are there. So here you have to understand all the duties at four levels. फर्स्ट लेवल इज बिफोर एग्जामिनेशन स्टार्ट। एग्जामिनेशन शुरू होने के पहले आप लोगों की क्या ड्यूटी है ये आप लोगों को समझना है यहाँ पे। उसके बाद में एट द बिगिनिंग ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम जब शुरू होने वाली है तो उस समय में आपकी क्या ड्यूटी है ये आपको यहाँ पे समझना है। इसके बाद में एग्जामिनेशन जब शुरू हो जाएगा तो तब आपकी कौन कौन सी ड्यूटी है ये आपको समझना है यहाँ पे। और एग्जामिनेशन हो जाने के बाद में आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन आपकी कौन सी ड्यूटी है ये आपको यहाँ पे समझनी है, राइट। सो लेट्स मूव। Duties of invigilator before examinations are participate in central superintendent briefing attentively and get details of duty room। आपको सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की ब्रीफिंग को अटेंड करना होगा और रूम के डिटेल्स लेना है कि किस रूम में आपको कब जाना है और क्या करना है। सो चेक द एग्ज़ाम शेड्यूल एंड बेल रिंगिंग शेड्यूल। तो आपको एग्ज़ाम का शेड्यूल पूरा पता होना चाहिए और बेल टाइमिंग पता होनी चाहिए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। Please don't carry mobile phones or any other communication devices to the examinations room। एग्जामिनेशंस रूम में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है या तो फिर बाकी दूसरे जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है ये सब लाना बिल्कुल मतलब यहाँ पे बैन किया हुआ है। अगर गलती से आपके पास में मोबाइल फ़ोन वगैरह आ जाता है तो आपको वो जमा करना होगा कंट्रोल रूम में। सो two invigilators as identified by CS needed to witness opening of trunk carrying confidential material in CS room। आप में से कोई भी दो इन्विजिलेटर को, टू इन्विजिलेटर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा CS के थ्रू। और जो ट्रंक होता है कॉन्फिडेंशियल मटेरियल का CS रूम में उसको आपके विटनेस में उसको खोला जाएगा। Ensure candidate use only black ballpoint pen provided at the center for answering and filling up the particular on the test booklet, OMR answer sheet and attendance sheet। तो बिफोर एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के पहले ही आपको ये इंश्योर कर लेना है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन सबके पास में है जो कि आपको दिया जाएगा, दूसरा पेन अलाउड नहीं है। Candidate will sign on OMR sheet in space provided of thumb impression at the time of starting the work and at the back of the OMR sheet
while depositing the OMR sheet. देखो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है. कैंडिडेट विल साइन, कैंडिडेट को साइन करना है कहाँ पे? OMR शीट पे, इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर थर्म इम्प्रेशन. तो OMR शीट जो है उसके OMR शीट के नीचे वाले पोर्शन में थर्म इम्प्रेशन का जो बॉक्स होगा वहाँ पे थर्म नहीं लेना है, उसका सिग्नेचर लेना है. तो कब लेना है ये? जब ये स्टार्ट हो जाएगी टेस्ट, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द वर्क, एट द एंड दूसरा जो सिग्नेचर है वो जब शीट को डिपॉजिट किया जाएगा तब लेना है. नो थंब इम्प्रेशन विल बी टेकन. थंब इम्प्रेशन को नहीं लेना है यहाँ पे. Check and ensure that the candidates are sitting on their allotted seats and do not have any of the varied prohibited items. जो भी atoms को prohibit किया गया है, ऐसे atoms कैंडिडेट ने लाए हैं नहीं लाए, इन सभी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन when they enter in the classroom, that means examinations room or hall. Check that all candidates have changed their mask and wearing the one provided with the test booklet only, and scribe also if any. सभी को चेक करना होगा कि उन्होंने अपना खुद का मास्क पहना है नहीं पहना है. और जो उनको मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे उन मास्क को उनको पहनने के लिए बोलना है. Invigilators will be present in the registration room from 11 a.m. till last entry of the candidate. This can be used on the rotational basis as per the roster by changing duty every half an hour. During the examinations, ensure that the students have written particular on test booklet and OMR answer sheet properly. Examination में ये देखना जरूरी है आपको कि जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स है, वो जो टेस्ट बुकलेट्स है उसके पर्टिकुलर प्रॉपरली फिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. OMR शीट पे जैसे रोल नंबर है, बुकलेट नंबर है, बुक कोड है, ये सब प्रॉपरली फिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये देखना होगा. और वो प्रॉपरली फिल करने के लिए आपको पहले से ही उनको इंस्ट्रक्शंस देना होगा. पुट एंड चेक द फैसिमाइल स्टैम्प ऑफ द सेंटर सुपरिटेंडेंट ऑन टेस्ट बुकलेट ऑफ ईच स्टूडेंट एंड काउंटर साइन OMR आंसर शीट. तो फैसिमाइल स्टैम्प आपको सेंटर सुपरिटेंडेंट का टेस्ट बुकलेट के ऊपर में करना होगा और काउंटर साइन भी करना होगा और OMR आंसर शीट के ऊपर में. नो इन्विजिलेटर शाल लीव द एग्जामिनेशन रूम विदाउट द मेकिंग अल्टरनेट अरेंजमेंट इफ नीडेड. इन्विजिलेटर को एग्जामिनेशन रूम को तभी छोड़ सकते हो आप अगर अल्टरनेट अरेंजमेंट आपने की है, या तो अगर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तो सेंटर सुपरिटेंडेंट की परमिशन लेना होगा आपको. किसी भी कंडीशन में आप रूम को छोड़ नहीं सकते हो, वहाँ पे अल्टरनेट अरेंजमेंट होनी ही चाहिए. दोनों में से एक इन्विजिलेटर वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए. During videography, you may announce that each candidate must keep their face in upright position when videography is done. जब वीडियोग्राफी क्लास में चल रही होगी, एग्जामिनेशन रूम में चल रही होगी, तो आपको इंस्ट्रक्शंस देना है कैंडिडेट को कि वो अपना चेहरे का मास्क हटाए और आगे की ओर देखे, कैमरा की ओर देखे. और ये भी सुनिश्चित करना है आपको, ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि वीडियोग्राफर पहले रोल नंबर को कवर करे, उसके बाद में कैंडिडेट के फेस को कवर करे. Ensure that videographer wear mask and gloves at all times, keeps a safe distance from each candidate or invigilator while recording the video. जब रिकॉर्डिंग चल रही होगी तो ये आपको खुद की सुरक्षा के लिए खुद को सेफ डिस्टेंस पे रखना है, किसी को टच नहीं करना है. Ensure that no candidate leaves seat without the permission. और समय समय पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई कैंडिडेट अपने सीट से दूसरी जगह पे नहीं बैठा है या कहीं पे विदाउट योर परमिशन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा. कीप एन आई फॉर एनी अनयूजुअल एक्टिविटी लाइक विस्परिंग, सिटिंग आइडियल, फ्रीक्वेंट वॉशरूम यूजेस एक्सेट्रा. और आपका आई होना चाहिए उन सभी एक्टिविटीज़ पे कि कोई आपस में बात कर रहा है या कोई गलत जगह पे बैठ गया है या फ्रीक्वेंटली बार बार वॉशरूम जाने के लिए बोल रहा है या जा रहा है. सो मेडिकल के अगर कोई मेडिकल केस है तो यू मे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट सेंटर सुपरिटेंडेंट फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन. अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है किसी कैंडिडेट की
तो आपको रूम नहीं छोड़ना है। अल्टरनेटिव जो भी इन्विजिलेटर है वो सेंटर सुपरिटेंडेंट के साथ में इमीडिएटली बात करेगा। अकम्पनी स्टूडेंट टिल वॉशरूम, वॉशरूम तक स्टूडेंट मतलब जो भी कैंडिडेट है वॉशरूम के लिए अगर जाता है तो उसके साथ में उसको कंपनी देना जरूरी है यहाँ पे। एंश्योर दैट ओनली वन कैंडिडेट मूव्स एट अ टाइम, किसी भी एग्जामिनेशन रूम से एक समय में एक ही कैंडिडेट बाहर में जा सकता है और उसको कंपनी भी देना होगा, मतलब उसके साथ जाना होगा। नो वॉशरूम यूजेज शुड बी अलाउड आफ्टर 4:30 PM, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर 4:30 PM किसी भी कैंडिडेट को वॉशरूम यूज करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, बाहर वॉशरूम के लिए जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, ये आपको वार्निंग देना ही होगा। एट 4:45 PM क्लोज द डोर्स ऑफ द एग्जामिनेशन रूम, 4:45 PM को आपको एग्जामिनेशन रूम या हॉल के डोर को बंद कर लेना है, बिल्कुल भी खुले नहीं रहने चाहिए 4:45 PM। सो अभी देखते हैं कि एग्जाम शेड्यूल का टाइमिंग क्या है, बेल टाइमिंग क्या है, एटसेट्रा। सो रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट इनटू अ एग्जामिनेशन सेंटर एज पर टाइमिंग इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड 11 AM to 1:30 PM, 11 बजे से 1:30 बजे तक कैंडिडेट सेंटर पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनके हॉल टिकट पे अलग अलग टाइम स्लॉट दिया हुआ है। 15-15 के बैच में गर्ल्स और बॉयज आएंगे। लास्ट एंट्री ऑफ कैंडिडेट इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर एट 1:30 PM, 1:30 PM तक लास्ट एंट्री है, उसके बाद में कोई एंट्री अलाउड नहीं की जाएगी। गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर इज 1:30 PM, 1:30 PM को गेट क्लोज हो जाएगा। थर्मल स्कैनिंग एट द एंट्रेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन रूम हॉल 11 AM to 1:30 PM, ये साइमल्टेनियसली पैरेलल में चलता रहेगा, जैसे जैसे बच्चों की एंट्री होगी अकॉर्डिंग टू टाइम indicated on their hall tickets। 11 AM to 1:30 PM scanning at entrance of the registration room or hall। Strict and compulsory frisking and document verification of the candidate inside the registration room from 11 AM to 1:30 PM। Entry of the candidate into the examination room 11 AM to 1:40 PM। तो यहाँ पे समय याद रखना है आपको। एंट्री ऑफ द कैंडिडेट इनटू द एग्जामिनेशन रूम 11 AM to 1:40 PM। Last entry of the candidate in the examination room is 11:30 AM to 1:40 PM। Opening of the seal, iron boxes and text booklet parcel in the control room of the center 1:15 PM। 1:15 PM is the timing to open a sealed iron boxes and text booklet parcel in the control room in the presence of 2 invigilators identified by the central superintendent। तो आप इस स्लाइड का स्निप लेके रखिए और इस टाइम शेड्यूल को बिल्कुल याद रखिए। आप लोग ये पता होना चाहिए सभी इन्विजिलेटर को, क्योंकि सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के थ्रू आपको अलग अलग ड्यूटीज दी जाएगी। At 1:40 PM to 1:50 PM, verification of admit card by the invigilator in the registration room while candidate display it from the distance। वेरिफिकेशन होगा एडमिट कार्ड का इन्विजिलेटर के थ्रू 1:40 PM, इन बिटवीन 1:40 PM टू 1:50 PM। अनाउंसमेंट बाय द इन्विजिलेटर इन द एग्जाम रूम, इसी समय में अनाउंसमेंट भी होगा इन्विजिलेटर का। कैंडिडेट हैव ऑक्युपाइड देयर असाइन सीट, कैंडिडेट ने अपनी ही सीट पे बैठना है, ये अनाउंसमेंट करना होगा। कैंडिडेट्स आर नॉट इन पोजीशन ऑफ एनी प्रोहिबिटेड एटम, जो भी प्रोहिबिटेड एटम की लिस्ट बाहर में लगी है या उनके आईडी में उनके हॉल टिकट में मेंशंस है, अगर उनमें से गलती से कुछ आ गया होगा तो उनको जमा करने के लिए, ये तो एग्जामिनेशन से रूम में आएगा ही नहीं, क्योंकि बाहर में फिक्सिंग वगैरह होगा तो वो सब चीज़ें हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये बोलना पड़ेगा गलती से अगर कोई चीज़ आ गई तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए ये सब अनाउंसमेंट करना यहाँ पे जरूरी है। Opening of sealed envelope containing 12 test booklet inside the allotted examinations room, this is very important। 1:40 PM को आपको क्या करना है, जो आपको एनवलप दिया गया है जिसमें 12 टेस्ट बुकलेट्स है उसको ओपन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट बाय द इन्विजिलेटर टू द कैंडिडेट 1:50 PM को आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 1:50 PM को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
ओपन 1:40 PM को करना है। राइटिंग ऑफ पर्टिकुलर्स ऑन कवर पेज ऑफ द टेस्ट बुकलेट बाय द कैंडिडेट 1:50 PM से लेके 1:55 PM तक बुकलेट के जो कवर पेज है उसके ऊपर में जो भी पर्टिकुलर्स है कैंडिडेट के, वो कैंडिडेट को लिखने के लिए बोलना है। कैंडिडेट लिखेंगे, आप चेक करोगे। टेक्स्ट बुकलेट के अंदर में OMR शीट होगी, वो बाहर निकालने के लिए बोलना है, क्योंकि ऊपर से अगर लिखने की कैंडिडेट कोशिश करेगा तो OMR शीट खराब हो सकती है। Opening of the seal of the test booklet by the candidate to take out the OMR sheet, both original and office copy 1:55 PM बोला गया है। लेकिन जो पहले मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड को फिर से देख लीजिए आप, इस स्लाइड को नोट करके रखिए या तो पिक लेके रखिए आप लोग। इंस्ट्रक्शन बाय द इन्विजिलेटर टू द कैंडिडेट 1:55 PM को फिर से इंस्ट्रक्शंस देना है। कैंडिडेट मस्ट टैली एंड इंश्योर दैट number and code of the test booklets and OMR sheet attached original and office copy are same। टेस्ट बुकलेट और OMR शीट पे जो नंबर और कोड है वो सेम है कि नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस देना है। कैंडिडेट मस्ट फिल अप करेक्ट इंफॉर्मेशन इन द OMR थंब इम्प्रेशन। Candidate must not detach separate tier office copy of OMR sheet attached with the original copy। कैंडिडेट को ये बोलना है कि वो जो OMR शीट है उसमें जो ऑफिस कॉपी है और ओरिजिनल कॉपी है वो उसको ना फाड़े, ना सेपरेट करे, ना कट करे। ये इंस्ट्रक्शन देना है। ये सब आपको लास्ट में करना है, खुद करना है इन्विजिलेटर को। ऑल रफ वर्क नीड टू बी डन इन द टेक्स्ट बुकलेट ओनली। जो भी रफ वर्क अगर करना है कैंडिडेट को तो टेक्स्ट बुकलेट में जहाँ पे रफ वर्क को स्पेस दिया है वहीं पे करेंगे वो। द कैंडिडेट शुड नॉट डू एनी रफ वर्क और पुट स्ट्रे मार्क्स ऑन द OMR शीट। OMR शीट पे कुछ भी नहीं करेंगे कैंडिडेट, ये साफ साफ आपको बताना है उनको। उसमें दोनों कॉपी आ गई थी, बोथ ओरिजिनल एंड ऑफिस कॉपी। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको देना है। टेस्ट विल बी कमेंसेस एट 2 PM शार्प। 2 PM को आपके टेस्ट शुरू हो जाएगी कैंडिडेट्स की। ऑल द अनयूज टेस्ट बुकलेट, अगर कोई अपसेंट वगैरह है तो जो अनयूज टेस्ट बुकलेट्स है इंटैक्ट सील टू बी सील्ड इन वाइट पेपर एनवेलप। सिटिंग प्लान अकॉर्ड सिटिंग प्लान उसमें होना चाहिए। रोल नंबर ऑफ absent candidates आर कलेक्टेड बाय द invigilators एंड काउंटेड टैलीड विद द absentee लिस्ट एंड हैंड ओवर टू द सेंटर सुपरिटेंडेंट। ये सब टैली वगैरह करने के बाद में ही आप सेंटर सुपरिटेंडेंट को ये सब चीज़ें क्या करोगे, हैंड ओवर करोगे। इसका टाइमिंग दिया है 2:05 PM, अगले 5 मिनट में ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन जो लिस्ट है उसके साथ में, एब्सेंटी लिस्ट के साथ में टैली करने के बाद में ये हैंड ओवर करना है। ऑन यूज टेस्ट बुकलेट्स एंड एम्प्टी एनवेलप cloth parcels of used test booklets are packed and sealed by the center superintendent immediately after the commencement of the examination। जैसे ही ये सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास में ये कलेक्ट हो जाएगा तो सेंटर सुपरिटेंडेंट के थ्रू इसको क्या किया जाएगा, पैक किया जाएगा और सील किया जाएगा। मतलब आप जब इसको हैंड ओवर करोगे तब विदाउट सीलिंग करना है, ये याद रखना है यहाँ पे। सर्टिफिकेट ऑफ पैकिंग ऑफ अनयूज्ड टेस्ट बुकलेट्स given in appendix 6 is prepared by the center superintendent and verified by the ENTA observer। Consolidate absentee proforma according to appendix 3 is also prepared by the center superintendent। Closing of the door of the examination room, जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम 4:45 को आपको एग्जामिनेशन रूम के डोर को बंद कर देना है। एंड द टेस्ट विल बी कंक्लूड्स एट 5 PM। टेस्ट 5 बजे के 5 PM को क्या हो जाएगी, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो लॉन्ग बेल होगी, लॉन्ग बेल जैसे ही होगी आपको स्टॉप राइटिंग बोलना है। और जब तक आप OMR शीट को कलेक्ट नहीं कर लेते हो, हॉल टिकट को कलेक्ट नहीं कर लेते हो, तब तक कोई भी कैंडिडेट को एंट्री नहीं दी जाएगी। और जो भी एग्जिट प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट को वहाँ से क्या किया जाएगा,
छोड़ा जाएगा, मतलब सेंट। सो बेल टाइमिंग इज वेरी इसेंशियल for the good conduction of the examination. So here is the first long bell at 1:30 p.m. indicates last entry in the examination center or the center gate closing time. तो जो सबसे पहले जो लॉन्ग बेल होगी 1:30 पीएम को, इसका मतलब है लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर। सेंटर में इसके बाद में कोई एंट्री नहीं होगी किसी की। सेंटर्स गेट क्लोजिंग टाइम, सेंटर का गेट भी क्लोज हो जाएगा पहले ही लॉन्ग बेल में 1:30 पीएम को। सेकेंड सिंगल बेल होगी 1:50 पीएम को। इसमें क्या करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट टू द कैंडिडेट। कैंडिडेट को 1:50 को जैसे ही सिंगल बेल होती है आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने, टेस्ट बुकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डबल बेल होगी 1:55 पीएम को, तो इसका मतलब है सील of the test booklet to be broken open by the candidates to take out the OMR answer sheet। 1:55 पीएम को कैंडिडेट को बोलना है, वो लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुकलेट्स को ब्रोकन करेंगे, सील को ब्रोकन करेंगे और OMR शीट को बाहर निकालेंगे। लॉन्ग बेल होगी 2 पीएम को, इसका मतलब है अभी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गई है, टेस्ट स्टार्ट हो गई है। जो भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट अपने रिस्पॉन्सेज भरना शुरू कर देंगे OMR शीट में। फिर आफ्टर एन 1 आवर सिंगल बेल होगी, इसका मतलब है कि एग्ज़ाम शुरू होके 1 आवर्स हो गया है। उसके बाद में और सिंगल बेल होगी आफ्टर 2 आवर्स, इसका मतलब 2 आवर्स हो गए। उसके बाद में 2.5 आवर के बाद में सिंगल बेल होगी, तो ये टाइम इंडिकेशन है। उसके बाद में 4:45 को जो सिंगल बेल होगी, तो इसका मतलब है आपको डोर को क्लोज करना है, तो 4:45 पीएम याद रखना। उसके बाद में लॉन्ग बेल होगी लास्ट में 5 पीएम को, टेस्ट विल बी कंक्लूडेड, टेस्ट खत्म हो जाएगी। सो इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप इसका एक स्निप ले लीजिए, ये जो शेड्यूल दिया है इसका एक स्निप ले लीजिए, या तो फिर वट एवर फोटो वगैरह ले लीजिए आप। जैसे ही एग्जामिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, कंक्लूड हो जाएगी। So room-wise collection of OMR, both original and office copy from the candidate by the invigilator, separation of original and office copy and carry the same to the examination control room after the packing inside. No sealing, seal नहीं करना है आपको, सिर्फ ओरिजिनल कॉपी को पिंक पेपर में जमा करना है और जो ऑफिस कॉपी होंगी उसको ब्लू पेपर एनवलप में क्या करना है, जमा करना है। याद रखिए ओरिजिनल कॉपी को पिंक पेपर एनवलप में जमा करना है आपको, ऑफिस कॉपी को ब्लू पेपर एनवलप, और इसको सील नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे गम होगा आपके पास में, राइट। फोटो पेस्ट जब करेंगे बच्चे तो उस गम से इसको बिल्कुल भी आपको एनवेलप को सील नहीं करना है। ये तो कंट्रोल रूम में होगा, ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। So after 5 p.m. after collection, counting and verification of OMR sheets by invigilators, so जैसे ही टेस्ट खत्म हो जाएगी तो 5 पीएम के बाद में क्या करना होगा, आपको कलेक्ट करना होगा सभी OMR शीट्स को, काउंट करना होगा और वेरीफाई करना होगा, ये इन्विजिलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एग्जिट फ्रॉम द एग्जामिनेशन रूम इन बैचेस, फ्लोर वाइज रूम वाइज एग्जिट एज प्लान बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट। सेंटर सुपरिटेंडेंट जो भी प्लान बनाया होगा उसी प्लान के बेस पे यहाँ पे रूम वाइज एग्जिस्ट होगा, और कोई भी इन्विजिलेटर विदाउट सेंटर सुपरिटेंडेंट की परमिशन के विदाउट सेंटर को छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम होगी आपने पेपर कहीं पे दे दिया और बिना बताए चले गए, ऐसा नहीं होगा। आपको परमिशन लेना होगा, जब सेंटर सुपरिटेंडेंट की परमिशन मिल जाएगी तब आप जा सकते हो। सो आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आया हो। So instruction to be given by the invigilator to the candidate about filling particulars and taking the test। कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो बीच बीच में आपको देना था। Do not fold the answer sheet nor make any stray marks on it। Do not remove office copy of the OMR sheet। Candidates are required to sign twice in the attendance sheet, firstly at the time of the receipt of the text booklet and secondly while handing over the OMR sheet। तो ये जो OMR शीट है जब हम इनको देते हैं तब अटेंडेंस शीट में एक बार साइन लेना होता है, और जब हम वापस लेते हैं तब एक बार लेना होता है। तो अटेंडेंस शीट में कैंडिडेट की 2 टाइम्स हमको सिग्नेचर्स लेना है। कैंडिडेट विल साइन ऑन OMR शीट इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर थंब इम्प्रेशन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द वर्क।
OMR शीट में जो थंब इम्प्रेशन की जगह दी है वहाँ पे जब वो काम करना शुरू कर देंगे, पेपर सॉल्व करना शुरू करके, तभी आपको क्या करना है, उसकी सिग्नेचर लेना है, थंब इम्प्रेशन नहीं लेना है। The candidate are required to put their signature at the space provided to put the left thumb impression 2 times in attendance sheet against their names and also write their mother's name. Mothers का नेम ठीक से लिखना होगा अटेंडेंस शीट में as per the hall ticket. On completion of the test, candidate must hand over the OMR both original and office copy to the invigilator and take away only the text booklet with them. तो जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, लॉन्ग बेल हो जाएगी, तो सभी से OMR शीट्स को लिया जाएगा और उसके साथ साथ पे हॉल टिकट को भी लिया जाएगा, क्योंकि हॉल टिकट में वो पर्सनल डिटेल्स, मेडिकल डिटेल्स, जर्नी डिटेल्स सभी चीज़ें होती है, इसीलिए उसको भी सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। तो सिर्फ कैंडिडेट यहाँ पे खुद के साथ में क्या लेके जाएगा, फिर टेस्ट बुकलेट ही लेके जाएगा। कुछ और इंस्ट्रक्शंस है जो कि इसेंशियल है आपको पता होना। कैंडिडेट को जब पर्टिकुलर्स फिलिंग करना हो, जब टेस्ट दे रहे हो, तो ये बताना जरूरी है। इंस्ट्रक्शंस का पिक ले लीजिए आप। ब्लैक बॉल पॉइंट ही ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है। यहाँ पे 13 पेन्स विल बी प्रोवाइडेड। उनको पेपर स्टार्ट होने से पहले ही बोलना है कि ये जो OMR शीट दी है उसके पीछे में जो इंस्ट्रक्शंस दी है उसको पढ़ने के लिए बोलना है, और सील तभी ओपन करने के लिए बोलना है जब वो डबल बेल हो जाएगी, जैसे हमने बेल वाले शेड्यूल में देखा था। आफ्टर ओपनिंग चेक केयरफुली दैट द टेस्ट बुकलेट कोड प्रिंटेड ऑन द OMR आंसर शीट इज द सेम एज प्रिंटेड ऑन द टेस्ट बुकलेट। जब वो ओपन करेंगे तो ये देखना बहुत ही जरूरी है कि टेस्ट बुकलेट पे जो कोड है वो OMR शीट पे भी होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर टू द इन्विजिलेटर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बोथ द टेस्ट बुकलेट। तो ये सब इंस्ट्रक्शन आपको कैंडिडेट्स को देना है। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताएं, उसको रिप्लेस करके दिया जाएगा या आगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। चेक इमीडिएटली दैट द टेस्ट बुकलेट बियर्स द फैसिमल स्टैम्प ऑफ द सेंट्रल सुपरिटेंडेंट। सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का स्टैम्प होना चाहिए उसके ऊपर में। विदाउट स्टैम्प वो पेपर सॉल्व नहीं होगा। Do not remove any pages of the test booklet. If a candidate is found removing any page from the test booklet, he or she shall be prosecuted again and will be liable for the criminal action. तो पेपर के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कैंडिडेट ने पेपर को टीयर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अब इसके ऊपर में कुछ अनवांटेड और राइटिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, डैमेज करने की। तो ये सब चीज़ें पेपर शुरू होने के पहले ही आपको कैंडिडेट्स को बताना पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट करना होगा। सो ये OMR शीट का सैंपल है। यहाँ पे फ्रंट फ्रंट पेज, बैक पेज, ऑफिस कॉपी का फ्रंट पेज और बैक पेज, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है। सो दिस इज अवर बुकलेट। तो इस बुकलेट में आपको कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, टेस्ट बुकलेट कोड कहाँ पे होता है। टेस्ट बुकलेट कोड यहाँ पे होता है। दिस इज द टेस्ट बुकलेट कोड, यहाँ से पता चलेगा। सेकेंड थिंग, टेस्ट बुकलेट नंबर कहाँ पे होता है। ये टेस्ट बुकलेट नंबर है, आपको यहाँ से पता चलेगा। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स कैंडिडेट को भरना होता है। डिटेल्स टू बी फील्ड बाय द कैंडिडेट्स। नंबर ऑफ डिटेल्स आर देयर, कैंडिडेट्स नेम, सेंटर नेम, एटसेट्रा एटसेट्रा, मदर्स नेम एटसेट्रा। तो ये जब कैंडिडेट यहाँ पे भरेंगे तो इसके अंदर में OMR शीट नहीं होनी चाहिए। ये बात याद रखना है आपको। जब टेस्ट बुकलेट्स पे यहाँ पे कैंडिडेट क्या करेंगे, अपने क्रेडेंशियल्स जो भी डिटेल्स है भरेंगे, तब इस बुकलेट के अंदर में OMR शीट नहीं होनी चाहिए या इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन आपको पहले ही दे के रखना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर टेस्ट बुकलेट पे कुछ लिखने जाएंगे बच्चे, मतलब कैंडिडेट, तो नीचे अगर OMR शीट रहेंगी तो वो डैमेज हो जाएगी और बाद में वो प्रॉपरली चेक नहीं होगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को ये बताना। बाय मिस्टेक ये होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए, ये याद रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर यू ऑल इन्विजिलेटर्स, काइंडली नोट दिस। आई होप कि यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। टेस्ट बुकलेट कोड, टेस्ट बुकलेट नंबर कहाँ पे है, डिटेल्स को कहाँ पे भरना है, और OMR शीट डिटेल्स भरते समय में इसके नीचे नहीं होनी चाहिए।
या टेस्ट बुकलेट के अंदर में नहीं होनी चाहिए। तो OMR शीट कुछ इस टाइप की होगी, ये सैंपल है उसका। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट नंबर होता है जिसको फिल करना होता है। तो यहाँ पे कैंडिडेट क्या करेंगे, रोल नंबर को पुट करेंगे, ये प्रॉपरली देखना है और उसके पहले ही आपको बोल देना है कि यहाँ पे रोल नंबर पुट करना है करके। और यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स है, यहाँ पे बहुत सारे बबल्स है वर्टिकल कॉलम्स में, 1 से लेके 0 तक के बबल्स है यहाँ पे। तो जो बॉक्स में जो नंबर या जो डिजिट्स यहाँ पे क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा, उसी बबल को यहाँ पे फिल करना है उस कॉलम में देख के, और प्रॉपरली ये इंस्ट्रक्शन देना है। वैसे जब आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो बच्चे पढ़ लेंगे इसको और ऐसा ही करेंगे, फिर भी आपको चेक करना है। टेस्ट बुकलेट भी नंबर यहाँ पे कैंडिडेट क्या करेंगे, फिल करेंगे और उसका बबल नंबर देख के उसको क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे यहाँ पे। तो जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया, यहाँ पे ये याद रखिए आप कि ये वाला कोड होना चाहिए, ये बुकलेट नंबर वगैरह होना चाहिए वहाँ पे, राइट। सो आई होप कि यहाँ तक आपका समझ में आया हो। ये जो आपकी OMR शीट है, तो इसके नीचे का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे। तो नीचे वाले पोर्शन में मदर्स नेम यहाँ पे लिखना होता है करंट राइटिंग में, राइट, एज पर द हॉल टिकट। इसके बाद में यहाँ पे फादर्स नेम लिखना होता है, कैंडिडेट का नेम होता है यहाँ पे लिखना होता है। इसके नीचे में सिग्नेचर लेना है उसका, और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे कैंडिडेट का साइन लेना है। तो एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन प्रीवियस स्लाइड में, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे ही इसको भरना है। इन्विजिलेटर वन का साइन यहाँ पे होगा, इन्विजिलेटर 2 का साइन यहाँ पे होगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी पिक लेके रखिए आप लोग। सो डिटेल एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑन एग्जाम डे। तो यहाँ पे जो सीटिंग प्लान दिया हुआ है, सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो अटेंडेंस शीट का प्रोफार्मा है, तो अटेंडेंस शीट के प्रोफार्मा में टेस्ट बुकलेट नंबर कहाँ पे लिखना है, कोड कहाँ पे लिखना है, OMR शीट का नंबर और कोड कहाँ पे लिखना है, कैंडिडेट का सिग्नेचर कहाँ पे लेना है, इन्विजिलेटर 1 और 2 का सिग्नेचर कहाँ पे, कैंडिडेट का फोटो पेस्ट करना है और उसका थंब इम्प्रेशन की जगह पे 1 एंड 2 सिग्नेचर्स लेना है। और जो हॉल टिकट है उसके साथ में यहाँ का सिग्नेचर और फोटो को भी मैच करना है, राइट। सो दिस इज द ड्यूटी। ये कुछ इस हिसाब से सिटिंग प्लान होगा। तो आपके पेपर डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू योर सिटिंग प्लान होना चाहिए, जो भी आपको सिटिंग प्लान मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किसी भी मतलब डायगोनली या पैरेलल में या किसी भी एंगल से वो पेपर कोड क्या नहीं होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए। मतलब ये के एडजेसन ये नहीं आना चाहिए, डी के एडजेसन डी नहीं आना चाहिए, या डायगोनली ये नहीं आना चाहिए। तो इसमें सिटिंग प्लान में एक के बाद में यहाँ पे बहुत एक तो डिस्टेंस छोड़ा जाएगा या किसी एक रो को छोड़ दिया जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा सिटिंग प्लान होने वाला है यहाँ पे। तो जो भी आपको सिटिंग प्लान मिलेगा उसी को फॉलो करना है, फॉलो योर सिटिंग प्लान। यहाँ पे ये सैम्पल प्लान मैंने बताया। तो दिस इज और अटेंडेंस शीट। यहाँ पे अटेंडेंस शीट में रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, यहाँ पे फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा। इसको हॉल टिकट के साथ में मैच कीजिए, जो भी आपके पास में लिस्ट है उसके साथ में मैच कीजिए। मदर्स नेम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे, वो भी अकॉर्डिंग टू लिस्ट ही होगा, या तो फिर हॉल टिकट में जो मेंशन होगा वही होना चाहिए। टेस्ट बुकलेट नंबर जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, वो यहाँ पे भरने के लिए स्टूडेंट कैंडिडेट को बोलना होगा। कोड भी यहाँ पे भरेंगे, OMR शीट का नंबर यहाँ पे भरना होगा जो कि OMR शीट पे दिया हुआ है। और यहाँ पे कोड जो है उसका वो भी यहाँ पे भरना होगा, जो भी ABCD होगा। कैंडिडेट का सिग्नेचर लेना होगा जब ये करोगे आप तब। और उसके बाद में इन्विजिलेटर 1 का सिग्नेचर होगा, उसके बाद में 2 का होगा। कैंडिडेट का फोटो यहाँ पे पेस्ट करना होगा, जो भी उन्होंने अपने साथ में लाया होगा। अगर नहीं किसी ने साथ में लाया है तो मतलब सेंटर पे फोटोग्राफर अवेलेबल होगा, वो साइमल्टेनियसली उसको फोटो प्रोवाइड करके देगा और यहाँ पे पेस्ट करने के लिए बोलना होगा। थंब इम्प्रेशन की जगह पे आपको सिग्नेचर लेना है। तो ये 2 टाइम्स है, मैंने आज पहले प्रीवियस स्लाइड में इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी है आपको कब कब लेना है। सो आई होप कि ये अटेंडेंस शीट आपके समझ में आई होगी। तो यहाँ पे पहला कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, थर्ड एंड सो ऑन, 12 कैंडिडेट की लिस्ट होगी ये ईच रूम के लिए। Some other important information. So unfair means practices and breach of examination rule. एग्जामिनेशन को रूल को तोड़ना, न मानना और कुछ भी अपने
कुछ भी अपनी मनमानी करना, इनमें कौन सी चीज़ें आएगी। तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड एटम, जिन एटम्स को लाने के लिए यहाँ पे मना किया गया है, ऐसे कौन कौन से एटम है, जैसे ऑर्नामेंट्स है, जो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स पहन के आती है, बॉयज़ भी आते हैं। तो जो भी है ऑर्नामेंट्स, वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड किए गए हैं, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। स्टेशनरी आइटम्स, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फ़ोन हो गया या और ब्लूटूथ डिवाइसेस एक्सेट्रा, या बाकी दूसरी एसेसरीज, पेन भी उसमें आता है, या कोई भी पेंसिल, इरेजर या कोई भी कंपास वगैरह, ये कुछ भी नहीं ला सकते। सो ईटेबल आइटम भी नहीं ला सकते बच्चे। इम्पर्सनेशंस एंड चीटिंग, अगर कोई व्यक्ति चीट करते हुए पकड़ा गया इसको, तो ये सब चीज़ें अनफेयर मीन प्रैक्टिसेस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स में आएगी, और इसको एक ऑफेंस माना जाएगा। और अगर चेकिंग होती है तो चेकिंग टाइम में ही ये सब चीज़ें पकड़ी जाएंगी, और वहीं पे छोड़ने के लिए उनको बोला जाएगा। या तो उनको फिर एंटर ही उनको परमिशन ही नहीं दी जाएगी अंदर आने के लिए, जब तक वो ये सब चीज़ें बाहर में नहीं छोड़ते हैं तब तक। लेकिन गलती से अगर सेंटर में आ गई एक आधी चीज़, तो ये इन्विजिलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेपर शुरू होने के पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में बोल देना। राइट। सो कंटेनिंग और कम्युनिकेटिंग विथ एनी पर्सन्स अदर देन एग्जामिनेशन स्टाफ, अगर किसी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम है, तो वो इन्विजिलेटर के साथ में वर्कफुली बात कर सकता है और उसकी प्रॉब्लम को लेके। लेकिन किसी और स्टाफ के साथ में अगर वो बात करते पकड़ा गया, तो उसको अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस, ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स माना जाएगा। राइट। क्वेश्चन पेपर का पार्ट्स, अगर क्वेश्चन पेपर को स्मगलिंग करते पकड़ा गया, तो ये इसमें कंसिडर होगा। टेकिंग अवे द आंसर शीट आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर में आंसर शीट लेके जाना मना है। तो फिक्स आपको बहुत ही मतलब यहाँ पे क्या रहना होगा, अटेंटिव रहना होगा। सो अफिक्सिंग अपलोडिंग ऑफ मोर फोटोग्राफ ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, प्रोफार्मा, जो भी हॉल टिकट लेके आए, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसके ऊपर में कोई मॉर्फिंग फोटोग्राफ वगैरह किया है, तो ये भी इसमें ही आएगा। ये सब यहाँ पे मना किया गया है। थ्रेटनिंग एनी ऑफ द ऑफिशियल्स, किसी भी स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को या इन्विजिलेटर को कोई थ्रेट नहीं कर सकता, किसी कारण मजबूर नहीं कर सकता यहाँ पे। फोर्सफुली एंट्री एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सेंटर में फोर्सफुली कोई एंटर नहीं हो सकता है, या फोर्सफुली कोई एग्जामिनेशन सेंटर को छोड़ के नहीं जा सकता। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं, कभी कभी पेपर समय के पहले हो जाता है, वो जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं या बोलते हैं कि हमें नहीं बैठना है, तो ऐसे सिचुएशन में उनको रोकना ही होगा। मैनिपुलेशंस एंड फैब्रिकेशंस ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, कोई ऑनलाइन अगर कोई छेड़छाड़ करता है डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, तो ये भी अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल में कंसीडर किया जाएगा। राइटिंग क्वेश्चन पेपर और आंसर्स ऑन एनी मटेरियल अदर देन द आंसर शीट, राइट। आंसर शीट के अलावा कहीं पे भी रिस्पॉन्सेस अगर दिए जा रहे हैं या लिखने की कोशिश की जा रही है, तो इसको भी अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल में कंसिडर किया जाएगा। सो क्लियरिंग ऑफ आंसर शीट्स एनी पेज ऑफ द टेक्स्ट बुकलेट, टेक्स्ट बुकलेट के किसी भी पेज को फाड़ना या उसके साथ उसको डैमेज करने की कोशिश करना, ये भी इसी में कंसिडर किया जाएगा। और अगर ऐसी कोई भी माल प्रैक्टिसेस, अनफेयर मीन्स ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल को यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है, तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और प्रोसिक्यूशन को उसको फेस करना होगा। इरेजिंग और अल्टरिंग एनी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द OMR आंसर शीट, प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द आंसर शीट, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए भी इसको इसमें ही कंसिडर किया जाएगा, और उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूट को फेस करना पड़ेगा। So make fake claims by the manipulating the responses in OMR answer sheet uploaded on the website for the challenge before or after declaration of result। या तो फेक क्लेम किया जाए, हमने ये रिस्पॉन्सेज दिए थे, हमारा रिजल्ट ये आ गया वगैरह, तो ये सब चीज़ें अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल में कंसिडर, क्योंकि ओरिजिनल के साथ साथ में ऑफिस कॉपी को भी मेंटेन किया जाता है, तो उसके कारण इन क्लेम्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। सो ड्रेस कोड के बारे में बात करते हैं। इफ कैंडिडेट आर वियरिंग गारमेंट्स विद फुल स्लीव्स with big buttons or baggage brooches,
which could be used to hide any tiny communication devices such as Bluetooth camera, etc. They need to be the checked thoroughly. Suspicious candidate may be asked to remove the shoes only at the time of the frisking. तो हो सकता है कि कैंडिडेट बहुत बड़े बड़े कपड़े या कुछ बुर्का जैसी चीज़ें वगैरह पहन के आए, तो हो सकता है उसके अंदर में ब्लूटूथ कैमरा या कुछ और कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो, तो उसको थॉरोली चेक करना बहुत ज़रूरी है। और जो सस्पिशियस कैंडिडेट हो तो फ्रिस्किंग के समय में उनको शूज़ निकालने के लिए यहाँ पे बोला जा सकता है। सो आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आया हो सकता है इसमें और कुछ कंफ्यूजन हो। तो हम अभी क्वेरी सेशन लेते हैं। तो क्वेरी सेशन में आप लोग आपके क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो, जिसको रिजॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे।